مشیر خزانہ حفیظ شیخ اسلام آباد میں بات چیت کر رہے ہیں، آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں۔ ذہنوں میں جو سوالات ہیں ان کے جواب دیے جائیں اور جو ڈسکشن ہے اس کو زیادہ وقت ملے۔ دیکھیں، آپ کو پتہ ہے کہ اس حکومت کے آنے سے پہلے ایک اقتصادی بحران تھا جو ورثے میں ملا۔ پچھلے 5 سال جو گزرے تھے اس حکومت کے آنے سے پہلے، اس میں ایکسپورٹس جو ہیں، یعنی ہماری چیزیں جو باہر کے لوگ خریدتے ہیں، ان میں گروتھ کی رفتار جو ہے وہ 0% تھی۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو پچھلے 2 سال ماضی کی حکومت میں کے گزرے، اس میں ہمارے فورن ایکسچینج ریزروز جو تھے وہ تقریباً 16-17 سے گر کر کوئی 9 کے قریب پہنچ گئے، یعنی آدھے ہو گئے۔ دوسری جانب کیونکہ ڈالر کو سستا رکھا گیا تو امپورٹس جو ہیں وہ ایکسپورٹ سے دگنی ہو گئیں، اور ان تمام تینوں کا اثر یہ پڑا کہ ہمارے پاس ڈالرز ختم ہو گئے کہ ہم اپنی معیشت کو اچھے انداز میں چلا سکیں۔ اور سائملٹینیسلی، یعنی اس وقت میں جو ہمارے قرضے تھے وہ بھی بڑھ کر کوئی 25,000 ارب روپے ہو چکے تھے، اور جو ڈیٹ اور لائبلٹیز ہیں ان کو ملایا جائے تو تقریباً 30,000 ارب یا 30 کھرب بن چکے تھے۔ تو ایک ایسی سچویشن تھی کہ جس میں یہ ایکسٹرنل اکاؤنٹ کا جو سچویشن میں ہم ایک ڈیفالٹ کی جانب دیکھ رہے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہمارے اخراجات تھے وہ آمدنی سے کافی زیادہ تھے، اور بنیادی طور پہ ہم اپنی حکومت میں جو گروتھ حاصل کر رہے تھے وہ باہر سے قرض لے کر ملک کے اندر خرچ کر کے کر رہے تھے۔ تو ایسی سچویشن میں سب سے پہلی چیز یہ مشیر خزانہ حفیظ شیخ اسلام آباد میں اقتصادی سروے جاری کرنے کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ اس موقع پہ انہوں نے بتایا کہ گزشتہ دور حکومت میں جان بوجھ کے ڈالر کو سستا رکھا گیا، اور ساتھ کہ ڈالر کی مصنوعی قیمت برقرار رکھنے سے حکومت کو امپورٹ اور ایکسپورٹ میں مسائل کا سامنا کرنا پڑا، اور اس دوران جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ بڑھ گیا۔ پھر انہوں نے بتایا کہ ان کی حکومت آنے کے بعد انہوں نے کس طرح سے اس حوالے سے کام کیا، اور بہت سارے ایسے بحران تھے جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو ورثے میں ملے، اور سب سے جو بڑا بحران تھا وہ اقتصادی بحران تھا۔ اور انہوں نے بتایا کہ اس وجہ سے جو پچھلی حکومت کی پالیسی تھی اس کی وجہ سے پاکستان کا ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑھ گیا اور پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر کے اوپر فرق پڑا۔ انہوں نے کہا جب ہم نے حکومت سنبھالی تو گزشتہ حکومت کی ان پالیسیز کی وجہ سے جب ڈالر کی کمی ہوئی تو ڈالر کی اس کمی کی وجہ سے ہمیں معیشت کو چلانے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ تو گزشتہ حکومت کئی بحران ان کو ورثے میں دے کے گئی، ان میں سے ایک بحران اقتصادی بحران بھی تھا۔ 20 ارب ڈالر کا خسارہ، اسے ہم نے کم کر 3 ارب ڈالر تک لے آئے۔ تو یہ اس حکومت کا ایک بڑا اہم کارنامہ ہے جو کہ پہلے سال اور خصوصی طور پہ اس سال 73% کمی کی گئی اس بڑے خسارے میں۔ دوسری جو اہم چیز کی گئی اس اور اس سے پچھلے سال بھی ملا کر کہ 5,000 ارب روپے قرضوں کی ہیڈنگ میں واپس کیے گئے۔ تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے کہ ایک ملک ماضی ہوئے قرضے چاہے کتنی تعداد میں ہوں وہ واپس کرے۔ تو جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آخر موجودہ پی آئی کی جو مٹ ہے اس نے جو قرضے لیے کیوں لیے، وہ اس وجہ سے لیے تاکہ ماضی کے قرضوں کا جو بوجھ ہے اس کو واپس کیا جا سکے، اور 5,000 ارب روپے واپس کیے گئے ماضی کے قرضوں کی مد میں۔ تیسری چیز جو ہے بہت اہم ہوئی ہے اس سال وہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے ایک بہت سخت انداز میں حکومت جات کو کنٹرول کیا، اور یہ شاید ہی پاکستان کی تاریخ میں ہوا ہو
کہ ہم نے کنٹرول اس انداز میں کیا کہ ہمارا جو پرائمری بیلنس ہے، یعنی جو ہمارے اخراجات ہیں وہ ہماری آمدنی سے کم ہوئے، اور جو پرائمری بیلنس ہے وہ سرپلس میں گیا۔ یہ شاید ہی کبھی ہوا ہو پاکستان کی تاریخ میں، اور اس کے لیے فائنینس سیکرٹری صاحب اور تمام جو فائنینس کی ٹیم ہے اس کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ پرائم منسٹر صاحب نے اس ایریا میں لیڈرشپ دکھائی، اور میں جنرل باجوہ کا بھی شکر گزار ہوں کہ ہم نے فوج کی جو بجٹ تھی اس کو فریز کیا، یعنی منجمد کیا۔ تو ایک فلسفہ یہ تھا کہ ہم حکومت کے اخراجات کو کم کر کے پبلک کے لیے جتنے زیادہ پیسے ہوں وہ دیں، کم فی۔ تو اب دیکھیں کہ ہم اس چیز میں بھی کامیاب ہوئے۔ ہم نے پورا سال جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے اس سے ٹکا بھی قرض نہیں لیا۔ ہم نے پورا سال کسی بھی ادارے کو، کسی بھی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کو ٹکا بھی سپلیمنٹری گرانٹ یعنی اضافی گرانٹ نہیں دی، کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ پاکستان کے جو پبلک ہے، پاکستان کے جو عوام ہیں، ان کے پیسے کو بہت احتیاط سے خرچ کیا جائے۔ اور اس کا اثر آپ نے دیکھا کہ کرونا وائرس آنے سے پہلے ہم پرائمری سرپلس کی ایریا میں چلے گئے۔ پھر ہم نے چونکہ یہ کوشش کی کہ ہم اپنے لوگوں کو بنیادی سہولیات دیں، ان کے لیے انفراسٹرکچر یعنی روڈز، بریجز، ہاسپٹلز، اس طرح کی چیزیں بنائیں، اور ہم جتنا ممکن ہو باہر کی دنیا پہ انحصار کم کریں۔ تو ہم نے ٹیکسز میں ایک بہت اچھی کامیابی حاصل کی، اور کرونا وائرس کے آنے سے پہلے 17% ٹیکسز میں اضافہ ہوا۔ اگر آپ یہ سوچیں کہ ہم نے امپورٹس کو کم کیا تاکہ ہم اپنے ڈالرز کو بچائیں، تو ان فیکٹ اس امپورٹس کی کمی کی وجہ سے ہمارے ٹیکس ریونیوز میں بھی کمی ہوئی، ورنہ یہ جو رفتار تھی ٹیکسز کے بڑھنے کی ایف بی آر کے اندر وہ تقریباً 27% جا رہی تھی۔ اب ٹیکسز میں بھی اضافہ ایک اطمینان بخش تک، ایکسپینڈیچرز یعنی اخراجات میں زبردست کمی اور ڈسپلن، باہر کے جو بھی قرضے ان کو خوش اسلوبی سے واپس کرنا، اور یہ کہ اپنے تعلقات تجارت کی بنیاد پہ دنیا کے ساتھ مینٹین کرنا، اور اپنے ایکسپورٹرز کو مدد دینا کہ وہ ایکسپورٹس بڑھائیں۔ پانچویں اور شاید ایک بہت بڑی کامیابی اس حکومت کی یہ رہی کہ پرائم منسٹر عمران خان کا جو ویژن ہے وہ یہ ہے کہ ہر چیز کا محور، ہر چیز کا جو سینٹرل پوائنٹ ہے وہ پاکستان کے عوام ہے، اور وہ عوام جو کہ کمزور طبقے سے ہیں، جو بھولے ہوئے ہیں، جن کے لیے ماضی میں بہت کم ایفرٹ ہوا ہے۔ تو ہم نے کم بجٹ کے باوجود ڈاکٹر سنیا نشتر کی جو منسٹری ہے احساس، اس کا بجٹ ڈبل کیا، اور تقریباً 100 بلین سے 192 بلین ایسے سوشل سیفٹی نیٹس کے لیے رکھے گئے کہ عام آدمیوں تک وہ پیسے پہنچائے جائیں، اچھے انداز میں پہنچائے جائیں، اس انداز میں پہنچائے جائیں کہ ساری دنیا دیکھے کہ اس میں کوئی سیاسی کنسیڈریشن بھی نہیں، کوئی علاقائی کنسیڈریشن بھی نہیں، کوئی مذہبی کنسیڈریشن بھی نہیں، اور صرف یہ کہ پاکستان کے جو غریب یا کم آمدنی والے لوگ، خواتین، خاندان ہیں، ان تک پیسے پہنچائے جائیں۔ تو یہ ایک بڑی اسٹیپ تھی، اور اسی اسٹیپ اور اسی اسپرٹ کی بنیاد پر جو ہمارے قبائلی علاقوں کے مرج ڈسٹرکٹس تھے ان کے لیے بھی 152 ارب روپے رکھے گئے، اور ہمارا جو
PSDP था उसको भी 701 अरब सरकार की तरफ से और तकरीबन 250 अरब का एक तखमीना लगाया गया कि अगर प्राइवेट सेक्टर के थ्रू मज़ीद प्रोजेक्ट्स हो सकें। तो ये हमारा एक फ़लसफ़ा था। दूसरी जानिब हुकूमती आमदनी बढ़ाने के लिए जो नॉन टैक्स रेवेन्यूज़ हैं, जो बजट में 1.1 ट्रिलियन यानी 1100 अरब थे, उसको हमने सरपास किया और वो 1.6 ट्रिलियन यानी 1600 अरब की सतह पे पहुंचे। ये इतना बड़ा जंप जो है वो भी शायद कभी माजी में नहीं हुआ हो। तो ये तो वो अहम बातें हैं जो कि इस साल में कोरोना वायरस के आने से पहले हम लोग हासिल कर पाए। अब कोरोना वायरस आया और उसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया। IMF की फोरकास्ट है कि 3 से 4% पूरी दुनिया की आमदनी गिर जाएगी और खुसूसी तौर पे जो मुल्क मुतासिर होंगे वो डेवलपिंग कंट्रीज होंगी, क्योंकि उनकी एक्सपोर्ट्स भी मुतासिर होंगी और उनकी तरह पाकिस्तान की रेमिटेंसेस भी मुतासिर होंगे, क्योंकि हमारे जो लोग खलीज के इलाकों में US और UK में काम करते हैं उनकी आमदनी कम होगी वहाँ पर, तो हमारे पास कम पैसे आएंगे। और अगर दुनिया की डिमांड जो है वो कॉन्ट्रैक्ट यानी कम होती है तो हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो भी नेगेटिवली मुतासिर होंगी और हुई। और इसकी वजह से जो हमने एक इस्तेहकाम अपने मुल्क में इक्तिसादी तौर पे पैदा किया था वो भी मुतासिर हुआ और पाकिस्तान की जो GDP है उसका अंदाज़ा एक लगाया गया कि इसकी वजह से कोई 3000 अरब से ज़्यादा उसको नुकसान पहुंचा। अब कोरोना के बारे में कोई भी चीज़ यकीन से कहना मुश्किल है, क्योंकि मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरीक़ों से एस्टिमेट कर रहे हैं कि किस चीज़ पे कितना असर हुआ। लेकिन जो चीज़ें बलाशुबा जिनमें कोई शक नहीं वो ये कि हमारी आमदनी जो है पूरे मुल्क की, जो हम समझ रहे थे कि तकरीबन 3% तक बढ़ सकती है, वो अब तकरीबन 0.4 यानी 0.4 कम होगी। तो इसका मतलब है कि हमें इसकी वजह से कोई 3 से 3.5% जो है अपनी कौमी आमदनी में नुकसान देखना पड़ा। साथ ही साथ हमारे एक्सपोर्ट्स भी मुतासिर हुए हैं। रेमिटेंसेस इस वक्त इतने ज़्यादा मुतासिर नहीं हुए हैं, लेकिन होने जा रहे हैं। अब FBR की जो टैक्स कलेक्शन थी, जो हम समझ रहे थे कि तकरीबन उसी रफ्तार पे अगर चलती रहेगी तो 4700 तक 4700 अरब तक पहुंच सकती थी, वो अब 3900 तक बमुश्किल पहुंच रही है। तो ये भी आप समझें कि कोई 750-800 अरब रुपए का नुकसान हुआ FBR को उसकी टैक्स कलेक्शन में। और कुदरती बात है कि इस माहौल में हम नहीं चाहते कि हम अपने बिजनेस या सिटीजन्स के ऊपर मज़ीद गिरफ्त मजबूत करें टैक्सेस के लिए, क्योंकि इस वक्त जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि हम लोगों की मदद करें और उन तक लिक्विडिटी यानी कैश या लोन्स पहुंचाएं। वो मुल्क के अंदर जो सुकड़ती हुई मईशत बन रही है कोरोना की वजह से, उससे अच्छी तरह नंबर आजमा हो सके। तो हुकूमत ने पहले ही ये फैसला किया कि हमें कोरोना वायरस से अच्छे अंदाज में मईशत को बचाना है और अपने लोगों को बचाना है। और इसके लिए आपने देखा कि 2 तरह के पैकेज दिए गए, कम से कम 2 तरह के। एक तो ये कि 1240 यानी 1240 अरब का एक पैकेज दिया गया। दूसरी जानिब स्टेट बैंक को सब्सिडीज भी दी गई और उनके थ्रू मुख्तलिफ प्रोग्राम
इम्प्लीमेंट कराए गए कि लोगों को खुसूसी तौर पे छोटे बिजनेस कंपनीज को पैसे मैसर हों ताकि वो अपने लोगों को कंपनीज के पेरोल पे बरकरार रख सकें। जो बड़े प्रोजेक्ट्स या कंपोनेंट्स थे इस स्टिमुलस पैकेज के वो आपको पहले ही पता है, मैं मुख्तसरन बता दूं। एक तो ये कि फैसला किया गया कि तकरीबन 1,60,00,000 खानदानों को कैश रकम दी जाए ताकि उनका कारोबार ज़िंदगी भी चले और उन पे जो दिक्कत आई हुई है वो उनकी हालत माशी तौर पे बिल्कुल ही तबाहकुन न कर दे। और डॉक्टर साहिबा मौजूद हैं यहाँ, सनिया निश्तर साहिबा, उन्होंने मुझे बताया है कि अभी तक 1 करोड़ ख़ानदानों को पैसे दिए जा चुके हैं, जो कि शायद दुनिया की तारीख में एक नुमाया चीज़ है कि इतने अच्छे अंदाज में दिए गए हैं और सारी दुनिया ने देखा है अपनी आँखों से कि ये आम पाकिस्तानी शहरी जो हैं उनको बिला इम्तियाज़ किए गए हैं हर छोटे शहर, हर कस्बे में पाकिस्तान के। और इसकी तफसीलात अगर आप चाहेंगे तो वो मिल जाएंगी। जब इंशाअल्लाह 1,60,00,000 लोगों को या ख़ानदानों को देते हैं और अगर 6 से 7 लोग एक ख़ानदान में हैं, ये समझ लें कि तकरीबन कोई 10 करोड़ पाकिस्तानी शहरी जो हैं इससे मुतासिर होंगे अच्छे अंदाज में। अब आप आ जाएं कि जी इसके अलावा क्या प्रोजेक्ट्स इस पैकेज में दिए गए। आपको पता है कि हमने कोई 280 अरब रुपए की वीट की प्रोक्योरमेंट की, यानी गंदम खरीदा किसानों से और ज़राअत के शोबे में पैसे ये 280 अरब रुपए पहुंचाए गए। हाँ, ये हुकूमत की एक पॉलिसी है, हर साल होती है, लेकिन इस साल इसकी तादाद पिछले साल के मुकाबले में तकरीबन दुगनी की गई और ये भी यकीनी बनाया गया कि ये प्रोक्योरमेंट हो ताकि जब एग्रीकल्चरिस्ट के हाथ में ये पैसे आएंगे तो वो अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी भी पूरी करेंगे और साथ ही साथ अगर उन्हें ट्रैक्टर चाहिए, उन्हें मोटरसाइकिल चाहिए, उन्हें घर बनाना है, उन्हें कोई मवेशी खरीदने, उन्हें कुछ भी इन्वेस्टमेंट्स करनी है तो वो करेंगे, उससे इकोनॉमी का पहिया जो है चलेगा। फिर आपने देखा कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के जो कारखाने हैं उनके लिए हुकूमत ने कहा कि हम जो भी छोटे कारखाने हैं पाकिस्तान में उनकी बिजली के 3 महीने के बिल हुकूमत भरेगी। ये नहीं कि उनको मौखर किया जाएगा बल्कि आउटराइट ग्रांट, यानी हुकूमत बगैर पैसा वो वापस मांगे उनके दे देगी ताकि उनकी जो बिजनेस है उसको रिवाइवल जो है उसको रिकवर होने में मदद मिले। फिर आपने देखा कि हमने ये एक स्कीम लाई 50 अरब रुपए की जो कि खुसूसी तौर पे ज़राअत के शुबे में है कि वहाँ पर फर्टिलाइज़र की कीमतें कम हों और लो कस्ट का मुकाबला किया जा सके और फार्मर्स को मज़ीद मराहत दी जा सके। फिर हमने जो यूटिलिटी स्टोर्स हैं तकरीबन उन्हें ये इंस्ट्रक्शन दी गई कि वो 50 लाख ख़ानदानों की बजाय 1 करोड़ ख़ानदानों तक पहुँचे और उनको जो भी रकम चाहिए वो उन्हें दी गई और 50 अरब रुपए एलोकेट किए गए यूटिलिटी स्टोर्स के लिए ताकि आम लोगों को, कम आमदनी वाले लोगों को, दरमियाने आमदनी वाले लोगों को ये सहूलियत मिले और जो खाने पीने की अहम चीज़ें थीं यानी आटा, चावल, दाल, घी, शक्कर, वो जो भी रेट्स थे मार्केट में उससे कम कीमत पर दिए गए। और रमज़ान शरीफ के दौरान ये ही सब्सिडी मज़ीद कोई 15 से 20 आइटम्स पर भी दी गई। मेरे ख्याल में लोग खुद ये फैसला कर सकते हैं कि ये जो प्रोग्राम था कितना अच्छा था
اور اس میں کن لوگوں کو کس حد تک مدد ملی. اب اس کے علاوہ بھی مختلف پیکیجز دیے گئے. نیا پاکستان یعنی جو کمزور اور کم آمدنی والے لوگ ہیں ان کے لیے پرائم منسٹر صاحب کا ایک ویژن ہے کہ انہیں گھر بنانے میں سہولیت دی جائے, اور 30 ارب روپے رکھے گئے ہیں اس کے لیے کہ ان کی جو پیمنٹ ہے گھر کی اس میں یہ مورگیج دینے میں مدد ہو تاکہ وہ خود ایک گھر کے مالک بن سکیں. اور اس میں ٹیکسز کی چھوٹ بھی دی گئی, اور کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے ایک مکمل پیکیج دیا گیا جس میں ٹیکسز جو ہیں وہ فکس ٹیکس کی بنیاد پر دیے گئے تاکہ ایف بی آر کی طرف سے کوئی ہریسمنٹ نہیں ہو, اور ٹیکسز جو ہیں ان کی جو ریٹ ہے اس کو کافی حد تک کم کیا گیا. اور ایک اور اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ جو یہ نیا پاکستان کے تحت چھوٹی آمدنی والے لوگوں کے لیے جو گھر بنیں گے ان کو اس کم ٹیکس میں بھی 90% کی چھوٹ دی گئی. یعنی اگر شروع میں ٹیکس 5,000 ہے اور بعد میں اس کو 2,500 کر دیا گیا تو 90% کی چھوٹ کر کے اس کو 250 کر دیا گیا, تو 5,000 کی بجائے 250 ہو گیا ٹیکس, تاکہ جو بھی لوگ خریدیں ان پہ یہ. اور 30 بلین رکھے گئے کہ جس میں مورگیج پیمنٹ میں حکومت ان کی مدد کرے. اور ساتھ ہی ساتھ پرائم منسٹر صاحب نے فیڈرل اور صوبائی حکومتوں سے کہا ہے کہ وہ لینڈ بینک بنائیں تاکہ سرکاری زمین کے اوپر یہ جو کم آمدنی والے لوگوں کے گھر ہیں وہ بن سکیں. جی, یعنی جو بھی زمینیں ہیں ان کی انوینٹری بنائی جائے, ان کو کنٹرول میں لایا جائے, ان کے اوپر اگر کچھ لوگ قابض ہیں یا کوئی ان میں کوئی پراپرٹی رائٹس کا ایشو ہے تو ان کو درست کر کے اس کام کے لیے ریکور کیا جائے. تو یہ جو ہیں تمام چیزیں آپ کے سامنے پیش کی. کچھ چیزیں میں بتاؤں کہ جس طرح میں نے کہا کہ جو ہمارا اوور آل جی ڈی پی کا گروتھ ہے جو سال مکمل ہو رہا ہے اس کا ایسٹیمیٹ 0.4% ہے, اور اس میں ایگریکلچر کی گروتھ تقریباً 2.67% ہے. انڈسٹری جو ہے اس میں خاص طور پہ وہ متاثر ہوئی اور وہ نیگیٹو 2.64 ہے. اور سروسز کا سیکٹر جس میں خاص طور سے جو کاروباری شعبہ ہے جسے ہم ہول سیل اور ریٹیل ٹریڈ کہتے ہیں اس میں نیگیٹو 3.4%, اور ٹرانسپورٹ اور کمیونیکیشن کیونکہ کرونا وائرس کی وجہ سے متاثر رہا اور لاک ڈاؤن ہوئی اور ریلوے اور ایئر ٹرانسپورٹ اور روڈ ٹرانسپورٹ بند رہی, تو اس میں بھی جو گروتھ ہوئی وہ منفی تھی, -7.1%. تو یہ جو ہیں بیسک پوائنٹس ہیں. مینوفیکچرنگ کے اندر کافی کمی ہوئی, -22.9% ایئر آن ایئر مارچ 2020. اور فسکل ڈیفیسٹ کو ہم نے پھر بھی ایک مینیجبل سطح تک رکھا, اور جولائی سے لے کر مارچ تک یہ 4% رہا جی ڈی پی کا, جبکہ پچھلے سال یہ 5.1% تھا جی ڈی پی کا. جس طرح میں نے کہا کہ پرائمری بیلنس کو ہم نے سرپلس میں رکھا تھا 194 بلین یا 0.5% پازیٹیو آف جی ڈی پی, جبکہ یہ پچھلے سال -1.2% تھا. اب میرے خیال میں اپنے کامنٹس جو ہیں ان کو کنکلوڈ کروں گا.
ताकि हम Q&A कर सकें। हमारी कोशिश ये है कि आने वाला बजट जो है उसमें हम लोगों को मज़ीद मराहत दें, मज़ीद रिलीफ दें। कोरोना वायरस से डील करने के लिए हमारे जो सोशल सेफ्टी नेट्स हैं उनको हम मज़ीद फंडिंग दें ताकि वो लोगों तक पहुंच सकें और हम अपनी इंडस्ट्री को जो है अच्छे अंदाज में ट्रीट करें। खुसूसी तौर पे नए टैक्सेस नहीं लगाए जाएं और जो टैक्सेस हैं उनको भी रिव्यू किया जाए और उनमें कमी लाई जाए ताकि इकोनॉमिक इंसेंटिव्स मिलें लोगों को कि वो इस सिचुएशन से बेहतर अंदाज में निपट सकें। तो वी आर हियर। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने कॉलीग्स का, खुसूसी तौर पे रज़ाक दाऊद साहब, हमाद अज़हर साहब, डॉक्टर इशरत हुसैन, खुसरो बख्तियार साहब, सनिया निश्तर साहिबा, असद उमर साहब, हमारे पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी कुरैशी साहब और मेरी चेयरपर्सन नौशीन साहिबा, फाइनेंस सेक्रेटरी साहब का मैं जिक्र कर चुका हूँ, हमारे नए स्पेशल सेक्रेटरी मोहसिन मुश्ताक साहब और ऑफ कोर्स जो इकोनॉमिक सर्वे के टीम के लीडर्स हैं डॉक्टर इम्तियाज़। अगर मेरे जहन से कोई नाम इस वक्त निकल गया है तो जैसे ही वो नाम याद आ जाएगा उसका भी आपको मेंशन कर दूंगा। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। राइट सर, प्लीज क्या नहीं सर डाउन से आप जो जीडीपी का इस दफ़ा परफॉर्मेंस रही है वो -4% रही है। इस तरह हम जो देख रहे हैं कि दूसरे जो लोग हैं, IMF ने -1.5% का एस्टिमेट किया, अभी लेटेस्ट जो वर्ल्ड बैंक की आई है वो -2.6 कर रही है। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस? कौन से नंबर्स ऐसे हैं कि जिसकी बेसिस पे आप -4% एक्सपेक्ट कर रहे हैं और उनके ज़्यादा नज़र आ रहे हैं? एक और दूसरा, जो भी सूरत हाल हो, इस नेगेटिव ग्रोथ की वजह से कितना नुकसान होगा, यानी कितने लोग पावर्टी में मजीद चले जाएंगे और कितने लोग बेरोजगार होने का खदशा है? इस तरह मैंने शुरू में ही कहा कि कोरोना वायरस के असरात जो हैं उनको क्वांटिफाई करना, यानी उन पे कोई नंबर लगाना इतना आसान नहीं। और चूंकि ये चीज़ अभी अनफोल्ड कर रही है तो हतमी तौर से नहीं कहा जा सकता कि ये किस रफ्तार से बढ़ेगी और कब इसका ख़ात्मा होगा। और साथ ही साथ ये कि उसकी वजह से जो सोशल डिस्टेंसिंग है या लॉकडाउन के जो तरीक़ाकार है मुख्तलिफ, वो किस अंदाज में आगे बढ़ेंगे। हुकूमत ने कोशिश की है कि एक बैलेंस स्ट्राइक किया जाए, एक जानिब अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको सेफ्टी देने के लिए इस बीमारी से, और दूसरी जानिब उनकी इकोनॉमिक जो कंडीशन है उसको बिल्कुल बहुत ख़राब होने से बचाने के लिए। तो एक जानिब ये लिक्विडिटी दी गई है और उनको पेरोल के लिए सब्सिडाइजेशन की गई है और मज़ीद मराहत दी जा रही हैं। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कियानी साहब कि मुख्तलिफ अदारों ने और मुख्तलिफ इकोनॉमिस्ट ने एक रेंज दी है एस्टिमेट्स की, और ये यही जाहिर कर रही है कि हम इस वक्त इस पोजीशन में नहीं हैं कि कॉन्फिडेंस से, एतमाद से कह सकें कि इसका रिज़ल्ट क्या होगा। जो हमने नंबर्स यूज़ किए हैं ये हमारी ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स या प्लानिंग कमीशन और जो नेशनल इकोनॉमिक बॉडी है हमारी NEC, उसके हैं कि जी ये -0.5% होगा। IMF ने जो नंबर इस्तेमाल किया था, जिस तरह आपने कहा, वो तकरीबन -1.5% है। और वर्ल्ड बैंक की एक अभी हाल ही में एस्टिमेट आई है जो तकरीबन -2.5% तक है। तो ये मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स हैं, सबकी नीयत अच्छी है, सब
डेटा जो है तकरीबन एक जैसा है, लेकिन वो मुख्तलिफ असम्पशंस लगा रहे हैं ऑन द मैग्नीट्यूड एंड सिवियरिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ द कोरोना वायरस, और ये कि वो जो अपनी तरफ से समझ रहे हैं कि मुख्तलिफ सेक्टर्स पे क्या असरात होंगे, उनके जो इंटरनल एक्सपर्ट्स हैं वो बता रहे हैं। मेरे ख्याल में अगले 30 दिन में जब ये जून का साल मुकम्मल हो जाएगा तो हमें बेहतर अंदाज़ा होगा, क्योंकि कभी कभी कोई सरप्राइजिंग रिजल्ट भी आ रहे हैं। जैसे आपने देखा कि मई के महीने में इनफैक्ट एक्सपोर्ट्स जो हैं हमारी वो बढ़ी, तो ये बैकलॉग ऑर्डर्स का है या कुछ, ये रज़ाक दाऊद साहब आपको बता सकेंगे। तो मैं तो फ़कत एहतियात बरत रहा हूँ कि किसी भी नंबर के ऊपर ज़्यादा हतमी तौर के ऊपर रिलाय करने की बजाय हमें अपने को ओपन माइंडेड रखना है और देखना है कि किस अंदाज में चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। शकील अहमद समानी। शकील साहब, शेख साहब ये फरमाइएगा कि जिस तरह लास्ट ईयर नेगेटिव ग्रोथ रही थी, टैक्स मुहासिल की 0.4%, और फिर IMF के प्रोग्राम के अंदर ये 5.5 ट्रिलियन का ओवर एम्बिशियस टारगेट रखा गया। 45% ग्रोथ थी, जैसा आपने कहा कि अगर कोरोना ना आता तो हम 27% तक चले जाते, फिर भी उस टारगेट से काफ़ी कम होता। लेकिन देखने में यह है कि टैक्स कलेक्शन जो है उसमें बेहतरी नहीं आ रही, डिस्पाइट के कई ऐलानात किए गए और रिफॉर्म चलानी थी, भी नहीं आई, कंटिन्यूटी एक्सिस्टेंसी नजर ना रही। जो जिन लोगों से ID कार्ड की शर्त का ऐलान किया गया था कि उनको रजिस्टर करेंगे, उस पर अमल भी नहीं किया गया। तो आप समझते हैं कि जो नए माली साल का भी टारगेट रखा जा रहा है 3.9 या जो तकरीबन रखा जा रहा है कोई 5.1 या 4.9 ट्रिलियन का, तो वो अचीवेबल होगा इस हालात में जब कोरोना से मुआशत चुकी है और 90% से ज्यादा डेट टू GDP हो जाएगा, IMF के जो एस्टीमेट्स हैं। तो हम कब तक कर्जों पर रिलाई करते रहेंगे, कब तक कर्जों की बुनियाद पर हम मुआशत को चलाते रहेंगे? जी देखिए, मैं आपके सवाल का जवाब का एक हिस्सा मैं दूंगा और फिर चेयरपर्सन जो हैं नौशीन साहब दे सकती हैं। ये आपकी बात दुरुस्त है कि पिछले साल जो टारगेट एम्बिशियस था, ये में जो पहला राउंड हुआ रिव्यू का IMF के साथ, इसको इनफॉर्मली 4.8, तो हम ये समझ रहे थे कि हम 4.8 या तो पूरा कर लेंगे या उसके करीब पहुंच जाएंगे। और जिस तरह मैंने कहा कि 70% जो ग्रोथ थी रेवेन्यूज़ की, वो पाकिस्तान के जो माजी में ग्रोथ रही है उसके मुकाबले में तकरीबन ठीक थी, लेकिन जो हमारी रिक्वायरमेंट है उससे अब ये भी आप पैटर्न देखें कि आखिरी जो 2 महीने होते हैं उसमें रेवेन्यूज़ अमूमन जो हैं वो औसतन 10 महीने के मुकाबले में बेहतर होते हैं। समझ रहे थे, हम कॉन्फिडेंट थे कि हम 4.7 तक पहुंच जाएंगे, लेकिन अब तो ये बात किसी तरह से नहीं हो सकती, क्योंकि कोरोना मामलात जो हैं बिल्कुल ऊंधे कर दिए हैं। अब हमने जो रखा है वो एस्पिरेशनल टारगेट है, लेकिन हमारा कोई इरादा नहीं हम बहुत अग्रेसिवली करें, लेकिन ये भी तो मुमकिन नहीं हो सकता कि टैक्स कलेक्शन साहब हैसियत लोगों से नहीं हो, या ये कि जो लोग बहरहाल जब कोरोना से रिकवर कर जाएंगे और अगर अच्छी आमदनी बनाएंगे इंशाअल्लाह, तो वो अपनी हैसियत के बेसिस पर टैक्स देंगे, और यही हमारा गोल है। नौशीना कुछ कहना है? शुक्रिया सर। ये आपको ग्रोथ का तो शेख साहब ने बता ही है। मैं ये बताना चाहती हूँ, एक खास चीज देखने में आई है और मैं इस मौके का उठाते हुए आपको बताना चाहती हूँ कि ओवरऑल तो 17% थी,
मगर डोमेस्टिक ग्रोथ जो थी वो 27% थी, जिसमें इनकम टैक्स की ग्रोथ की शरह 21%, में 30%, एफडी में 24% और ओवरऑल डोमेस्टिक 27% था और इंपोर्ट के रेवेन्यूज फीसद की शरह से बढ़े। अब हम ये देखें तो पिछले 10 साल में आज तक डोमेस्टिक टैक्सेस की ग्रोथ इस शरह से नहीं देखी गई। 2016 में इंपोर्ट की शरह 26, जबकि लोकल डोमेस्टिक टैक्सेस 18% से बढ़े। इसी तरह 17 में 12 और 6 से डोमेस्टिक बढ़े। 18 में 18% से इंपोर्ट्स बढ़ी और डोमेस्टिक 11% से। पिछले साल 3 से इंपोर्ट बढ़ी और -3 से डोमेस्टिक ग्रोथ। सो देयर इज अ स्ट्रक्चरल शिफ्ट टुवर्ड्स द डोमेस्टिक कलेक्शन, जो एक अच्छी डायरेक्शन है किसी भी एक टैक्स के निज़ाम से। अब किसी को ये अंदाज़ा नहीं था कि इस स्ट्रक्चरल चेंज में, जबकि हमारा इन्हिसार इंपोर्ट पे कम और अपने डोमेस्टिक टैक्सेस की तरफ अच्छा जा रहा है, मुस्बत रुझान, तो कोविड की वजह से भी आप देखिए कि हमारी शरह है डोमेस्टिक की अभी भी 14.5% पे बरकरार है, जो कि इन हालात में एक हैरानकुन बात लगती है। और कोविड के बाद 17% से हमारे ओवरऑल ग्रोथ 13% पे गई, अप्रैल में 11, मई में 6 और जून में हम एंटिसिपेट करते हैं कि 2% पे आएगी। तो अगर हम उसी रफ्तार से चलते जाते तो हमारे महसूलात की जो ग्रोथ की शरह थी वो किसी स्टैंडर्ड से डोमेस्टिकली वाज ओवरऑल वेरी सेटिस्फैक्ट्री, और इसका बरमला इजहार IMF की टीम्स और भी इंटरनेशनल एजेंसीज जो आई उन्होंने इसका इजहार किया कि सेटिस्फैक्ट्री है। इसी वजह से उन्होंने इसके टारगेट्स डाउन किए थे कि इंपोर्ट की कंप्रेशन की वजह से ये टारगेट्स अचीव नहीं किए जा रहे। थैंक यू। शुक्रिया मैम। हमारे साथ जूम पर भी हमारे कुछ काफी दोस्त मौजूद हैं। न्यूज के अशरफ मेलकम साहब सवाल करना चाहते हैं, काइंडली उनका माइक खोलें। जी मेलकम साहब। जी शेख साहब, मैं अशरफ मलकम जियो से। मेरे 2 सवाल हैं जी। तो हमें इस वक्त जो हमारे कर्जों की शरह है GDP का, वो लेटेस्ट नंबर्स के मुताबिक शायद 98% है। ये फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी एक्ट की क्या ये खिलाफ वर्जी नहीं है? दूसरा सवाल सर कि इस वक्त हमारी जो ग्रोथ है अभी हमने फिक्स किया अगले माली साल के लिए वो 2.3% है, जब स्टेट वर्ल्ड बैंक का अभी से कहना है कि साल है वो नेगेटिव हो। हमारी प्रोजेक्शंस गलत हैं या वर्ल्ड बैंक की प्रोजेक्शंस गलत हैं? पिछले साल भी ऐसा था, हमारी प्रोजेक्शन पॉजिटिव थी लेकिन IFIs की प्रोजेक्शन नेगेटिव थी, आखिर पे नेगेटिव ही निकली। इसी दफा भी माली साल शुरू होने से पहले ही हमारी और IFIs की प्रोजेक्शन में फर्क है। और हमारा कहना है 2.3% होगी, जबकि वो कह रहे हैं कि नेगेटिव। किसकी कैलकुलेशन गलत है? हमारी कैलकुलेशन में भी प्रॉब्लम है या IFIs की कैलकुलेशन में भी प्रॉब्लम है? अगर उनकी कैलकुलेशन हमारी इकोनॉमी के बारे में गलत है तो क्या हुकूमत पाकिस्तान या फाइनेंस मिनिस्ट्री उनसे टेकअप कर रही है चीजें? देखें, ये दोनों बहुत अच्छे सवालात हैं। और जो नंबर 2 सवाल था आपका कि मुख्तलिफ अदारे जो हैं उनके एस्टिमेट्स में क्यों फ़र्क आ रहा है, इसलिए कि कोरोना वायरस एक ऐसी चीज़ है जिससे पहले कभी नहीं निपटा गया। तो हर अदारा या उनके एक्सपर्ट्स जो हैं वो अपने अंदाज में कैलकुलेट कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये बात बताऊं अशरफ साहब कि जब भी कोई मीटिंग होती है तो उसमें इन तमाम अदारों के नुमाइंदों को भी बुलाया जाता है। तो वर्ल्ड बैंक के जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी हमारे साथ मीटिंग में शामिल होते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक के, हमारे अपने जो थिंक टैंक हैं, स्टेट बैंक है, पाइड है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, प्लानिंग मिनिस्ट्री है, ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, और सब मिल के कोशिश करते हैं कि समझ सकें कि क्यों ये वेरिएशन आ रही है। इसमें कोई साजिशी पहलू नहीं है, ये फ़कत एक पेशा वराना जो है डिफरेंसेस होते हैं लोगों के, और आखिरकार जो हकीकत है वो आ जाती है। ये फौरी नहीं आती है, तो 3 महीने बाद जब नंबर्स फाइनल होते हैं तब आ जाती है। तो इंशाल्लाह वो आएगी। जहाँ तक पाकिस्तान के डेट का इशू है तो वो 88% के करीब है इस वक्त डेट
टू GDP रेशो। और आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि हर हुकूमत को ये दिक्कत रही है कि जो एक लेजिस्लेटिव या कानूनी रिक्वायरमेंट है कि हम 60% से ऊपर न जाएं, वो कोई भी नहीं हासिल कर सका है। और जिस तरह मैंने कहा कि इस गवर्नमेंट के लिए खुसूसी तौर पे विरसे में एक मसला मिला है कि कर्ज़ों की तादाद पहले ही ज़्यादा है और उनको वापस करने के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है। और जिस तरह मैंने कहा कि 5,000 अरब रुपए दिए गए कर्ज़ों की वापसी में, और आने वाले साल में मज़ीद 3,000 अरब जो हैं वो बजट किए गए हैं वापसी के लिए। मेरे साथ जो मिनिस्टर हैं इकनॉमिक अफेयर्स के, जो इन बैनुल अक़वामी अदारों के साथ डील करने की बुनियादी जिम्मेदारी भी उन पर है, मैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि वो थोड़ा जो है इस इशू के ऊपर आप लोगों को ब्रीफ भी कर दें। और क्योंकि ये एग्रीकल्चर और फूड सिक्योरिटी के मिनिस्टर भी रह चुके हैं और एग्रीकल्चर एक बहुत अहम शोबा है, उसके बारे में भी अगर ये मुख्तसरन ब्रीफ कर दें कि हुकूमत की क्या जो हैं इस वक्त प्रायोरिटीज़ हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको इल्म है कि पाकिस्तान की मईशत के ऊपर सबसे बड़ा चैलेंजेस हमारा एक्सटर्नल फाइनेंशियल पोजीशन रही। जैसा आपने देखा, करंट अकाउंट डेफिसिट की वजह से हमें इदारों के पास जाना पड़ता है। तो सबसे पहले तो करंट अकाउंट डेफिसिट इस साल आपका 3.3 पर ख़त्म होगा। एक्सटर्नल डेट जो हमारा है इस वक्त वो तकरीबन 76.5 अरब डॉलर है। लेकिन इसमें मैं आपको दो चीज़ें बताना चाहूँगा कि 2008 के अंदर ये हमारा 41 बिलियन से 2008 से 2013 तक ये 41 अरब डॉलर था, जहाँ से ये 48 अरब पे चला गया। मगर 2013 से 2018 तक ये 48 अरब से 73 अरब डॉलर पर चला गया। और इस 73 अरब डॉलर जो इजाफा हुआ, इसके अंदर सबसे ज्यादा इजाफा जो किया गया वो बॉन्ड्स और कमर्शियल डेट। ये बड़ा महंगा डेट होता है और शॉर्ट टर्म होता है। और तकरीबन 15 अरब डॉलर कमर्शियल और बॉन्ड में लिए गए, जो शॉर्ट टर्म इस हुकूमत को देने पड़ते हैं फिर वापस। उसका दुरानिया थोड़ा होता है। इसी हुकूमत ने जब ये आई, और हाल ही में आपने देखा कि वजीर आज़म ने जब ये अपील की डेट रिलीफ की G20 को, तो 1.8 अरब डॉलर की हमें वहाँ से एक स्पेस मिली। और मैं पूरी दुनिया के आलमी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इस वक्त पाकिस्तान के इस्लाहाती प्रोग्राम को सराहते हुए हमारे साथ भरपूर तावन कर रहे हैं। आपने देखा कि IMF ने 1.4 बिलियन दिए कोविड के लिए, और कल एशियन तरक्काती बैंक ने आधा 500 मिलियन, आधा अरब कोविड फाइनेंसिंग के लिए उन्होंने स्पेशल फाइनेंसिंग की। और ये बहुत कम शरह सूद पर %0.5 0.5% प्लस लाइबोर पे दी, और ये 15 साल के लिए है, जिसके अंदर 3 साल का ग्रेस पीरियड है। इसी तरह जहां करंट अकाउंट डेफिसिट को इस हुकूमत ने मैनेज किया 19 अरब से 3.3 पे, और उसी तरह फिर फॉरेन रिजर्व्स को बिल्ड किया। 9.7 अरब डॉलर पे इस हुकूमत को फॉरेन रिजर्व्स मिले, जो इंशाल्लाह इस साल के आखिर तक एक रफ एस्टिमेट है मेरे पास कि 18.5 अरब डॉलर से ऊपर हो जाएंगे इंशाल्लाह। इससे आपकी जो कमर्शियल, इसमें कमर्शियल भी है और स्टेट बैंक दोनों के जी, तो इससे आपको अंदाजा हो सकता है कि पाकिस्तान के ऊपर जब भी मईशत को जो शॉक्स मिले हैं वो आपके एक्सटर्नल फाइनेंशियल पोजीशन की वजह से मिले हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट के गैप से मिले हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट की वजह से मिले हैं। उनको इस हुकूमत ने बड़े ही बेहतर तरीके से इस तरफ ले आए हैं कि इंशाल्लाह हम एक मुस्तहकम पोजीशन पे हैं। और साथ ही कोविड की वजह से मईशत का पहिया चलाना और उस पहिए के अंदर ज़राअत को लेके आगे चलना, जिससे
मईशत के अंदर बेहतरी आए, रोजगार मुहैया हो, उसके लिए 50 अरब का एक फिस्कल स्टिमुलस दिया गया है। और आपको पता ही है कि वजीर आजम पाकिस्तान ने एक एग्रीकल्चर इमरजेंसी प्रोग्राम के तहत 300 अरब रुपए का एक मरबूत ज़राई तरक्याती बजट रखा गया है, जो मेजर क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी वो और इरिगेशन के निज़ाम को, पानी को की मुहैया करने का जो निज़ाम है और उसकी तरसील है, उसको बेहतर बनाने के लिए रखा गया है। तो मेरे नज़दीक इस हुकूमत के जो चैलेंजेस थे सबसे बड़े, ख़ास तौर पर एक्सटर्नल अकाउंट के जो चैलेंजेस थे, वो बड़ी बेहतर तरीके से इस वक्त बहुत बेहतर तरीके से एड्रेस किए गए हैं। और पूरी दुनिया, IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन तरक्याती बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक और मुख्तलिफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इसी चीज़ों को देखते हुए पाकिस्तान के साथ इस सफ़र के अंदर हमारे हम सफ़र हैं और रहेंगे। थैंक यू। थैंक यू मखदूम साहब। इरशाद अंसारी साहब, रोजनामा एक्सप्रेस। मेरा क्वेश्चन दो है। एक तो डॉक्टर साहब ये बता दीजिएगा कि आपने बताया कि 5,000 अरब कर्जा आपने वापस किया है, आपने अब तक कितना कर्जा लिया है? और दूसरा ये कि जो 30,000 अरब का कर्जा था अब कितना हो गया है पर पाकिस्तानी, अब कितने का मकरूज हो गया है? और दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने कहा है कि जब आप आए तो आपको विरसे में डूबी हुई मैशत मिली। उसमें सर एक चीज़ ये है कि आप सब जितने भी इस वक्त भी स्टेज पे बैठे हुए हैं, ये सारे पिछली 2 अदवार में रहे हैं। क्या ये आप लोगों के अपने खिलाफ चार्जशीट नहीं है? और क्या आप इसका कुफारा अदा करेंगे कि आज हम इस पोजीशन में हैं कि आपने इस डूबती हुई मैशत को, हम ये कह सकते हैं कि आपने बचा लिया है और मैशत को जो है वो तरक्की के राह पे लगा लिया है, और आप अपने माजी का कुफारा इससे अदा कर देंगे? जी और कोई भी ले लें क्वेश्चन, ताकि 2-3 जमा हो जाएं तो फिर उनका। जूम पे सना वाला डॉन न्यूज़ से क्वेश्चन करना चाहता है, माइक ऑन। चलिए फिर पाकिस्तान का गहरा रिलेशन है जी, मामलात में भी उसका एक बड़ा रिलेशन आता है। कभी ये खबर आ जाती है कि जी IMF वाले रूठ गए, कभी ये खबर आ जाती है कि IMF वाले राजी हो गए। तो ये मुझे बताइए कि इस वक्त जो IMF का जो प्रोग्राम है उसकी रियल पोजीशन क्या है, और क्या जो सरकारी मुलाजमीन के हवाले से पिछले दिनों आया था कि उनकी तनख्वाहें बढ़ रही हैं, फिर ये आया कि वो नहीं बढ़ेंगी, तो इस हवाले से आप कोई वजाहत करेंगे? एक्सप्रेस ट्रिब्यून से सर जवाब पहले जवाब देंगे या नहीं बताएं, सवाल बताएं। डॉक्टर साहब 2 सवाल हैं। एक तो